चलो let's take an example. You have a balloon. आपने balloon में पानी भरा and you take a sharp pencil. चलो pencil नहीं कैंची ले लेते हैं या छुरी ले लेते हैं. We take a knife and we slash the balloon. Balloon फट जाता है. Would that be a rupture or would that be a laceration? That would be Rupture. a laceration. अभी तो मेरी आवाज आ जानी चाहिए. आ रही है, ठीक है. So that would be a laceration. Similarly, if we take a balloon and we fill it with water और हम उसे अपने हाथों से दबाते हैं, मतलब we try to compress it और वो pressure की वजह से फट जाता है, that is a rupture. तो थोड़ा सा वेग आइडिया देने के लिए कि what a rupture is and what a laceration is, इसको हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे. So in this session and in the next one, we won't be doing cases as such, क्योंकि ocular trauma है, trauma history की होगी, that's pretty obvious. We will be focusing on pictures and examinations. ठीक है, symptoms भी साथ साथ में आपसे डिस्कस कर लूंगा. We will mainly be focusing on examinations. Investigations भी हम कर लेंगे और एक दो हैं जिनकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉरेन बॉडीज, तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे. Let's take a look at our first set of pictures. This patient, he presented to you in the emergency department with a history of trauma in the right eye. What was the trauma? He was involved in a fist fight और सीधा दाईं आंख पे उनको मुक्का पड़ा आके. Take a moment and appreciate what we can see in this picture. क्या नजर आ रहा है हमें? There are a few findings over here. Black eye वो Can anyone subcutaneous tell me? Does hemorrhage. anyone know? एक्कीमोसिस नजर आ रही है. अच्छा, I think मेरे speakers में headphones में मसला था, मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता था. Let me try again. लोग बोल रहे हैं but I cannot hear. कोई kindly बोलेगा दरमियान में? Can anyone speak for me? हाँ ठीक है. Subcutaneous hemorrhage. अब आवाज आ रही है. So that's good. So yes, we can see a few things. Number one is a hemorrhage or an ecchymosis. Ecchymosis क्या होता है? Discoloration, bluish discoloration. So we can see ecchymosis around the eye. That is our first finding. It's a very good finding. और हमें क्या मिल रहा है? What are we seeing? We are seeing subconjunctival hemorrhage. Laceration. Laceration नहीं. We're not seeing any laceration. रप्चर है, रप्चर. ये rupture भी नहीं है. ठीक है. We cannot say on this examination whether it's a laceration or a rupture because हमें continuity check करनी पड़ेगी. So this is a general examination. What I can see is around the limbus there is a redness. There's so much redness that the area is raised. So one, there is so what is this? This is extravasation of blood into the subconjunctival space. This is a massive subconjunctival hemorrhage. Okay, the cornea is somewhat clear. इसमें साइड में मुझे क्लियर ही लग रहा है. ठीक है. और मुझे क्या नजर आ रहा है? हमने ecchymosis देख लिया, हमने subconjunctival hemorrhage देख लिया, and I'm also going to say that this person has periorbital swelling. तो ऐसे हमें नहीं appreciate हो पा रही, but the thing is कि left thumb से उनकी upper lid को ऊपर करना पड़ रहा है और फिर जाके हमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, मामूली सा हमें cornea नजर आ रहा है. This tells me that the upper lid is swollen as well. So in this picture we can appreciate these three findings. तो pupil भी नहीं नजर आ रहा. Pupil क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? सारा green. ग्रीन है तो आंखें लोगों की सब्ज नहीं होती. फर्क होता है ना रंग. Brown, blue, green. It can be normal. We cannot say for sure right now. ठीक है, कलर चेंज हो सकता है ट्रॉमा में, but this is a finding we'll discuss later. क्या हुआ? इन पेशेंट को हमने सपोर्टिवली मैनेज किया. ठीक है, we started him on NSAIDs, ice pack दे दिया ताकि आंख के ऊपर लगाएं and all that stuff, right? So this is a picture from a few days later, and I've asked this person to look upwards, ऊपर देखें, to elevate his eyes. Now there are two important things which are visible to you, which should be visible to you in this picture. Mid-race.
हाँ 3 है बल्कि, मैंने midriasis अभी देखा है. So good, that's a good pick. The right eye is midriatic. It is dilated. और क्या है? Periorbital. Partial ptosis. So yes, you're thinking it's a ptosis. मुझे भी लग रहा है ptosis थोड़ा बहुत है क्योंकि swelling अभी भी है. Yes, ptosis or mild swelling. Hypotropia. Hypotropia. Yes, that is correct because this person is asked to elevate. इनकी left आंख ऊपर जा रही है, right ऊपर नहीं जा रही. So yes, there is a hypotropia. एक और चीज है. There's one more thing. Laceration on the inferior eyelid. No, that's good. That's good. There's a laceration. Okay, there's a heel laceration around the inferior eyelid. One over here, and I think this is also a laceration. So we have 2 heel lacerations. There's still one more finding regarding the eyes. Upper eyelid की swelling. That's good. बिल्कुल है. अच्छा, तो ठीक है, that's good. These are all the findings and you picked them excellently. इस picture में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें identify करना the last finding which I wanted to show you. So let's take a look at this. अब मैं इनको ऊपर से देख रहा हूँ. What can we appreciate? Enophthalmos. Enophthalmos. किस आँख का? Right. Right side का. तो what is enophthalmos? The right eye has synced inwards. जिसमें exophthalmos की हम बात कहते हैं, जिसमें protrusion होती है, या proptosis की बात कहते हैं, जिसमें eyeball protrude कर रही होती है, इसमें retrude कर रही होती है. It's going back inside the orbit. So, what has happened in this patient? This patient has suffered trauma, as I cannot appreciate any laceration or perforation or discontinuity in the sclera or the cornea over here, and also in these pictures. I am guessing that this is a blunt trauma. Blunt का मतलब है, मतलब blunt का मतलब आपको पता है ना कि force not sharp. And secondly, इनकी history है fist fight की, मुक्का पड़ा है. This patient who presented to you with blunt trauma, on examination, he has subconjunctival hemorrhage, he has periorbital swelling, he has ecchymosis, he has a difficulty to elevate the eye, he has right enophthalmos. What do you think your diagnosis should be? क्या diagnosis हो सकता है आपका? या चले diagnosis छोड़ें, कोई अगर diagnosis ज़हन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर diagnosis नहीं ज़हन में आ रहा तो कोई investigation in examination findings की बेस पर आप करवाना चाहें. Close CT? injury है, contusion नहीं है. Contusion आपको लग रहा है, ठीक है? That's good. So investigation भी मैंने एक सुनी दरमियान में CT. That's right. You will perform a CT scan. So when I perform a CT scan of this patient, this is what I see. तो थोड़ा सा क्योंकि CT scan छोटा है, इसमें सिर्फ finding नजर आ रही है हमें, तो आपको थोड़ा सा मैं idea देता हूँ. These are the ethmoid sinuses. These are the ethmoid sinuses. This is the maxillary sinus. फिर ये inferior turbinate है, ये middle turbinate है, ये nasal septum है. What is the finding in this CT scan? This coronal CT scan. Maxillary sinus में कुछ चीज पीछे से protrude कर रही है. Right maxillary sinus. अच्छा ये Orbital पीछे floor fracture. orbital floor fracture. That's good. This is a coronal section. ठीक है? तो ये ऊपर है, पीछे नहीं है. अगर ये axial होता तो हम आगे पीछे कह सकते थे. ये coronal है. अगर आपको coronal 3 हम planes होते हैं ना axis जिसमें हम CT scan सकते हैं, sagittal, coronal or axial. So this is a coronal CT. So on the left side, this is the left side, we're saying that the continuity of the orbital floor is maintained. There's nothing wrong. The maxillary sinus is all right. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है, but it's not related to, or it might be related to the trauma. हमें इसे examine करना पड़ेगा. But the most important thing is हमें जिस आँख में findings मिल रही हैं, the right eye, what we're saying that something is protruding above downwards. So this actually is a very important sign. It's a buzzword. What we're seeing over here. क्या हमें लग रहा है कि something in the shape of a drop. Teardrop. It is protruding or it is coming down into the maxilla from the orbital floor, which is also the maxillary roof. So this is a teardrop sign on CTs. 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 So this is a teardrop sign on
So teardrop sign on CT, ठीक है, तो इसको आप appreciate करें. This is teardrop sign on CT. So our patient who presented with history of blunt trauma to the right eye, who has on examination ecchymosis, subconjunctival hemorrhages, periorbital swelling, then he has a difficulty in elevation, and who has an ophthalmos. And on CT scan, he has a teardrop sign. The diagnosis in our patient is a blowout fracture of the orbit. This patient has a blowout fracture of the orbit. दो सवाल जल्दी से हम आंसर करते हैं. ब्लोआउट फ्रैक्चर होता क्यों है और इस पेशेंट में डिफिकल्टी क्यों आ रही है एलिवेशन की? Anyone know the answer? दोनों पिक्चर्स एक ही पेशेंट की हैं. हाँ, एक ही पेशेंट की. दरअसल ये रेजोल्यूशन की बात की है कि काफ़ी मतलब ये जो इमीडिएट स्वेलिंग है एक्यूमोसिस रिजॉल्व हो गया, तो फिर उनकी पिक्चर्स ली गई हैं. तो बेसिकली इन दो इमेजेस को दिखाने का मकसद ये था कि इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटेशन आप एनऑप्थेल्मोस अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आंख वैसे सूजी भी होती है, पेरिऑर्बिटल एडीमा होता है, सबकंजक्टिवल हेमरेज होता है. ब्लोआउट फ्रैक्चर में जब पेशेंट स्टार्ट में आता है तो तब जरूरी नहीं है उसे एनऑप्थेल्मोस हो, लेकिन जब ये जो इमीडिएट इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, जो ब्लड एग्जामिटी हो, जब ये क्लियर होगा तो तब हमें ये दो फाइंडिंग्स क्लियरली हम इनको अप्रिशिएट कर सकेंगे. कौन सी दो फाइंडिंग्स? एनऑप्थेल्मोस एंड डिफिकल्टी इन एलिवेशन. तो ये फाइंडिंग जरूरी नहीं कि ऑन प्रेजेंटेशन आपको मिले, लेकिन आपको अगर बाकी चीजें मिल रही हैं तो immediate examination पे आपका suspicion होना चाहिए कि our patient has a blowout fracture and you need to get a CT scan or a X-ray done. दोनों में से कुछ एक आपको कराना पड़ेगा. तो two questions which I asked at the start, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा कि why does this happen and why is there difficulty in elevation? वो मे भी इसका कोई पार्ट नीचे प्रोट्रूड कर गया, वो ऑर्बिट को तोड़ के फिर ग्लोब ऊपर नहीं टर्न कर रहा. ठीक है, that's correct in some sense. ठीक है, दो तीन बातें आपने ठीक कही हैं. The general idea is right, और ऐसे ही होता है. बेसिकली आपको ब्लोआउट फ्रैक्चर मिलेगा ब्लंट ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ. जब प्रेशर आई बॉल में पड़ता है, जब मुक्का आके पड़ता है आंख के ऊपर, तो दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड. अब होता ये है कि जो लैटरल वॉल है ऑर्बिट की और जो सुपीरियर है रूफ, दे आर स्ट्रॉन्ग. द मीडियल वॉल and the inferior wall they are weak or the floor is weak. तो मीडियल वॉल के साथ क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास नेजल कैविटी पड़ी है, थ्रोडल साइनसेस हैं, और फ्लोर क्या है? फ्लोर के नीचे हमारे पास मैक्सिलरी साइनस है. तो कभी कभी इतना ज्यादा प्रेशर ट्रांसमिट होता है, इतनी ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट होती है एक मुक्के से कि देयर इज अ फ्रैक्चर आइदर ऑफ द मीडियल वॉल और द इंफीरियर वॉल. उस फ्रैक्चर के साथ ये होता है कि आइज के इर्द गिर्द जो पेरीऑक्यूलर फैट है वो ऑर्बिटल कैविटीज को छोड़ के, या फिर इसकी फ्लोर का फ्रैक्चर है तो वो आ जाएगा मैक्सिलरी साइनस के अंदर. तो मैक्सिलरी साइनस के अंदर आ जाएगा तो हमें टीयर ड्रॉप साइन मिलेगा. तो इसी फ्रैक्चर के अंदर, जिसके अंदर से ये फैट नीचे जा रहा है और टीयर ड्रॉप साइन शो कर रहा है, कभी कभी इसमें इंफीरियर ऑब्लिक मसल भी ट्रैप हो जाता है. आपको पता है कि इंफीरियर ऑब्लिक इज एलिवेटेड. इंफीरियर ऑब्लिक अगर ट्रैप हो जाए तो our patient will present with difficulty in elevation of the eyes. तो ये important दो tidbits थे इसके अंदर. How will you manage the patient? Immediately, like I said, NSAIDs, antibiotics आप इनको देंगे, NSAIDs देंगे, cold pack देंगे, और definitive treatment is, I think, surgery. जितनी important नहीं है, आपसे treatment इतनी नहीं पूछी जाएगी, but you have to recognize the condition. And all of the important signs are present in these images. This was a blowout fracture of the orbit. जब इतने मैसिव ट्रॉमा के साथ कोई पेशेंट आता है तो हम एग्जामिनेशन क्या क्या करते हैं? हम इसकी मूवमेंट्स और विजुअल एक्यूटी वगैरह देखते हैं. बिल्कुल, दैट्स करेक्ट. बिल्कुल हम सारी एग्जामिनेशन से करेंगे. मैं इसीलिए वो टिपिकल केस में नहीं चल रहा, क्योंकि उनमें काफी सारा टाइम लग जाएगा और रिडंडेंसी हो जाती है. अभी हम इतना अरसे से डिस्कस कर रहे हैं. यू शुड नो कि हमारा सीक्वेंस क्या है. विजुअल एक्टिविटी, एक्स्ट्राऑक्यूलर मूवमेंट्स, पिपिलरी रिफ्लेक्सेस, डायरेक्ट जनरल एग्जामिनेशन,
direct distance ophthalmoscopy, direct ophthalmoscopy, then anterior segment examination, then the fundoscopy. हम ये हमेशा कहते हैं, it is our routine in ophthalmology कि these are performed. सब कुछ जिस तरह सुनना है। बिल्कुल जिस तरह जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर मेडिसिन के अंदर उसी तरह ये सारी एग्जामिनेशंस these are you can compare them to the general physical examination. Yeah. So it is a question. क्या मतलब अगर पेनफुल है वो खोल नहीं सकता आए हम फिर भी करेंगे? नहीं हम ट्राई करेंगे ना. देखें इफ यू वांट टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स ऑन दिस पेशेंट तो हो सकता है इसकी आंख ना मूव करे. यू विल रिकॉर्ड दिस के लिमिटेड एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स. इफ देयर इज पेन यू विल रिकॉर्ड के एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स आर पेनफुल एज वेल. All these things they help towards our diagnosis. They aid our diagnosis and these are important. मैं आपको दोबारा रिपीट कह रहा हूँ. I'm not going to mention everything. Examinations अब दोबारा करेंगे. जो आपको confusion होती है do ask, but our workup is the same. ठीक है. Examinations हम वही करेंगे. What is the reason of anisocoria in this patient? ये भी एक question आया है. Does anyone know why this patient has anisocoria? The right pupil is dilated. Maybe the ciliary ganglion is damaged. Yes, that is correct. So there can be a variety of reasons in this patient. One thing, क्योंकि blunt trauma हुआ है, maybe the ciliary ganglion can be damaged, maybe the iris is damaged, or maybe a part of the third nerve can be damaged. तो इसकी काफी ज्यादा reasons हो सकती हैं related to पेन trauma. भी हो सकती है ना? पेन भी हो सकती है इस पेशेंट को. जाहिर बात है आपको मौका पड़े आपको दर्द नहीं होगी आंख के ऊपर. नहीं मैं डायलेशन की बात कर रही हूँ. डायलेशन हो जाती है ना पेन में? यस डायलेशन नहीं डिपेंड करता है वो डिजीज स्पेसिफिक है. ट्रॉमा में आई थिंक स्पाज्म भी होता है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बाकी मैं आपने अच्छा सवाल पूछा जिसने भी चैट में पूछा है तो आई एम गोइंग टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क. मैं इसके बाद बोर्ड में ऐड कर दूंगा द रीजन फॉर डायलेशन. तो ये मेरे लिए एक रिमाइंडर है. This was blowout fracture of the orbit. भाई इस केस को कितना टाइम लगा रिजॉल्व होने में? रिजॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? ये जो इन्फ्लेमेशन है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, सबकंजक्टिवल हेमरेज, इकोमोसिस, ऑल दैट स्टफ, इट टेक्स 3 to 4 days यूजुअली. तो साथ साथ हम देखते रहते हैं. जो मेन इसका गोल होता है एनोप्थेल्मोस के साथ आप देख लें कि इस पेशेंट में एक नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट आ रहा है. नॉन कॉमिटेंट स्क्विंट की क्या कॉज है? इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट. तो हमें स्क्विंट की कॉम्प्लिकेशंस को भी ट्रीट मतलब स्क्विंट की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं. वी हैव टू ट्रीट दैट. जो मैं मकसद में जो बात कहना चाह रहा हूँ कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज दिस पेशेंट इज acutely we have to supportively manage. इनकी हमने सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है एंड डेफिनेटिव मैनेजमेंट इज करेक्शन ऑफ दिस फ्रैक्चर. ठीक है. वी हैव टू करेक्ट दिस ताकि सारा इशू रिजॉल्व हो सके. तो आपके लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं. ठीक है. तो बाकी डिटेल्स कितनी देर में रिजॉल्व होता है, कुछ क्वेश्चंस मुझे आते होंगे, सम क्वेश्चंस आई डोंट नो. तो जहाँ तक मेरा अपना मैंने देखा आई थिंक 3 to 4 days में ये एक्यूट क्लियरेंस हो जाती है. उसके बाद हमें ये पिक्चर मिलती है जिसमें एक्यूट सिम्टम्स इन्फॉर्मेशन के वो रिजॉल्व हो जाते हैं. ये था ब्लोआउट फ्रैक्चर. थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ. ये चीजें आपको समझ आ देनी चाहिए. क्वेश्चंस बिल्कुल क्वेश्चंस आपके ज़हन में आएंगे. दैट इज गुड. कीप अ नोट ऑफ दोस क्वेश्चंस. आप चैट बॉक्स में सेंड कर दें या एंड पर आप डिस्कस कर लें. थोड़ा सा एक रिदम टेम्पो जो है ना मैं नहीं चाह रहा कि टूटे. हाँ अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा इन पिक्चर्स में तो उसी वक्त आपने बता ताकि मैं क्लैरिफाई कर दूं. दिस इज अ पैथोजेनेसिस ऑफ ऑक्यूलर डैमेज बाय ब्लंट ट्रॉमा. तो ब्लंट ट्रॉमा हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं. इज ब्लंट ट्रॉमा क्लोज्ड ग्लोब इंजरी और एन ओपन ग्लोब इंजरी? क्लोज. इट्स अ क्लोज्ड ग्लोब इंजरी राइट. क्लोज. कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड. अभी तक हमने क्लोज्ड ग्लोब इंजरीज देखी हैं. सो दिस इज द मैकेनिज्म. नॉर्मली जो आई का स्ट्रक्चर होना चाहिए इट्स मार्क्ड बाय द डैश्ड लाइंस. दिस जब सामने से फोर्स आती है इट अप्लाइज प्रेशर. What happens? जो नॉर्मल कॉर्निया होता है वो अंदर की तरफ आता है. It touches the iris. It can come in contact with the lens. वो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है from the cornea through the aqueous humor to the iris to the lens. और लेंस से कहाँ पे पीछे ट्रांसफर होगी? Into the vitreous. Vitreous से ट्रांसफर होगी तो कहाँ जाएगी? It will transmit all around.
ठीक है, द रेटिना, द कोरोइड इन द स्क्लेरा। नॉर्मली जो ग्लोब का स्ट्रक्चर होना चाहिए था इन डॉटेड लाइंस, वो आप देख लें कि इसमें हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, इट्स एक्सपेंडिंग। लन ट्रॉमा क्या कहता है, अगर बिल्कुल सामने से आ रहा है, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आइरिस, लेंस, फोर्स ट्रांसमिट हो रही है। लेंस के बाद फोर्स ट्रांसमिट हो रही है कहाँ, विट्रस में। विट्रस कहाँ कर रहा है, थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द आई, एंड इट स्ट्रेचेस द आई। इट समवट, अचानक जब प्रेशर बढ़ते है तो आई बॉल एक्सपैंड करती है। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो प्रेशर कितना है, ठीक है। इफ इट्स टू मच टू बेयर, जाहिर बात है कि द आई बॉल विल रप्चर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा ना। इस तरह मैंने आपकी बलून की एग्जांपल दी थी कि दैट बलून कैन रप्चर। अगर नहीं है तो वी कैन हैव अ डिफरेंट एक्सटेंट, मतलब वी कैन हैव डिफरेंट साइंस ऑन एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज कांटेक्ट में आ रही है विद दैट एक्सटर्नल फोर्स इन ब्लंट ट्रॉमा। इट इज द कॉर्निया। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन अ पेशेंट who has blunt trauma? What signs can we expect in the cornea? क्या हमें मिल सकता है कॉर्निया में? एंटीरियर सैनिकी, एंटीरियर साइनिकी। एंटीरियर साइनिकी जो है हम तब कहते हैं जब आइरिस कॉर्निया के साथ अटैच हो जाए। आप यू राइट इन थिंकिंग दिस कि कॉर्निया आइरिस को टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन उनको आपस में ग्लू होने के लिए कुछ चाहिए। तो साइनिकी हम तब कहते हैं जब हीलिंग हो और हीलिंग के वक्त आइरिस कॉर्निया के साथ चिपक जाए। अब आपको खुद पता है कि इन्फ्लेमेशन जब भी होती है, हीलिंग आपने पैथोलॉजी में पढ़ा है, इट स्टार्ट्स अबाउट आफ्टर अ वीक। पहले न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो सफाई करते हैं, उसके बाद हीलिंग होती है। तो साइनिकी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होगा, और वो एक तो कॉर्निया और आइरिस की कंडीशन है। हम कह रहे हैं कॉर्निया में क्या होगा, आपकी आंख पे कोई बंदा आके मुक्का मार देता है, क्या हो सकता है आपके कॉर्निया? Corneal indentation. Corneal indentation, that is correct. Corneal indentation एडिमा होगा बिकॉज एडिमा हो सकता है, that's good। देखो ये बात है ना, एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी। ब्रेक इन द डेसिमेट्स मेम्ब्रेन। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रांग मेम्ब्रेन, हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि डेसिमेट्स मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जा रही है, कॉर्निया पर एक स्ट्रेच पड़ रहा है। डेसिमेट मेम्ब्रेन कैन ब्रेक, इट कैन रप्चर। और क्या हो सकता है? साइड रेडनेस होगी, hemorrhage हो बिल्कुल, सकता exactly, we can see the different signs of inflammation at or around the cornea। तो अभी मैं आपको एग्जाम्स दिखाऊंगा, पिक्चर्स दिखाऊंगा, एंड द सीक्वेंस ऑफ दोस पिक्चर्स इज लेंस चेंजेस, सॉरी कॉर्नियल चेंजेस, आइरिस चेंजेस, लेंस चेंजेस एंड विट्रस एंड रेटिनल चेंजेस। तो अभी हमने कॉर्निया की डिस्कस की, तो यू आर राइट, कॉर्नियल एडिमा हो सकता है, डेसिमेट मेम्ब्रेन में ब्रेक हो सकता है। इस पेशेंट को क्या है? कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर है, राइट? कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। So corneal ulcer can also take place. You said decimate membrane break हो सकती है. This is a decimates membrane break. Okay? Decimates membrane में एक linear बड़ा सा break आ गया. And how do we know this is a decimates membrane break? क्योंकि iris के सामने जो है, cornea के अंदर ही एक दरमियान सी ये लकीर बड़ी सी लकीर बन गई है. So this is a decimates membrane break. These two findings, edema, these three findings we can expect in the cornea. कॉर्निया के पीछे क्या पड़ा होता है? एक्वस, एक्वस ह्यूमर, और वैसे फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? आइरिस है। तो व्हाट चेंजेस कैन टेक प्लेस इन द आइरिस? लेट्स सी, एक्वस ह्यूमर और आइरिस में हमें क्या चेंजेस मिल सकती हैं? व्हाट डज दिस पेशेंट हैव? He has hyphema, he has blood in the anterior chamber. Hyphema क्यों हो सकता है? जब इतना ज्यादा प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, so the vessels around the iris, the vessels at the base of the iris, the vessels around the trabecular meshwork, they can rupture. तो उसकी वजह से hyphema हो सकता है। So hyphema is also a finding in blunt trauma. और हमें क्या मिल सकता है? यूवीआई। uveitis बिल्कुल मिल सकता है, हम उस पर थोड़ा जोर से आएंगे। Focus on this picture and tell me what's happening. Detachment of iris. Exactly. So what are we seeing? We're seeing two pupils. हमें दो pupil नजर आ रहे हैं pupillary patches. One is over here, जो थोड़ा frame से बाहर है. One is over here, which is around the limbus. What has happened? Due to the excessive force and excessive pressure, iris अपनी जड़ से उखड़ गया है. It has detached from its root. So what is this detachment called? क्या कहते हैं हम इस detachment को?
iris है तो Iridodialysis. iridodialysis. That is correct. So a patient can have a blunt trauma can have iridodialysis. Dialysis हम आई में तब यूज करते हैं जब हम बेस से या उसकी जड़ से किसी चीज को उखाड़े. तो हम इसकी जड़ से उखाड़ रहे हैं इसको. This is a iridodialysis. The iris is dehiscent or it has been removed at its base. Normal pupil ऊपर है और यहाँ पे dialysis हुई है. तो this patient, due to his iridodialysis, he can have uniocular diplopia. So आपको iridodialysis भी मिल सकता है. और क्या मिल सकता है? चलो आयरिस की हमने 2 फाइंडिंग्स कर ली ना. आयरिस में हमने iridodialysis देख लिया, हमने एक हाइफीमा देख लिया जो हमारे लिए हाई थी. कॉर्निया आयरिस अब हो गया. आयरिस के पीछे क्या पड़ा हुआ है? What is behind the iris? Lens. It's the lens. Lens. अब आप मुझे बताएं कि आयरिस पे जब फोर्स ट्रांसमिट हो रही है और वो पीछे लेंस के साथ जाके लग रहा है, इट इज टचिंग द लेंस, मतलब और इट्स प्रेसिंग अगेंस्ट द लेंस, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? क्या हो सकता है तब? Dislocation of lens. डिसलोकेशन ऑफ लेंस भी हो सकती है, बिल्कुल. चले हम कहते हैं डिसलोकेशन से कम पावर है. इतनी पावर नहीं है कि लेंस डिसलोकेट हो रहा है. इतना अभी मसला नहीं है कि कैटरैक्ट बन रहा है. बस नहीं, बस आयरिस जाके लेंस को टच हुआ है और आयरिस का पिगमेंट लेंस के ऊपर जाके लग गया. posterior semic. पोस्टीरियर साइनिक. ठीक है, Cataract. दैट्स गुड. आपके कॉन्सेप्ट है. अच्छा, पोस्टीरियर साइनिक की अगेन मैं वही कहूंगा कि वी नीड टाइम एंड वी मतलब थोड़ा सा मसला होना चाहिए उसको बने. तो पोस्टीरियर साइनिक की यस इट इज अ कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल हो सकता है. कैटरैक्ट भी हो सकता है, दैट इज करेक्ट. अच्छा चलो मैं इस इमेज को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ. बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड, आयरिस जो है वो जाके पीछे लेंस के साथ टकराया है, एंड एज इट हैज कोलाइडेड विद द लेंस इट हैज लेफ्ट सम ऑफ इट्स पिगमेंट ऑन द लेंस, ऑन द कैप्सूल ऑफ द लेंस. So we can have a circular shaped deposition of iris pigment on the anterior capsule of the lens. तो ये circular shape हमें complete circle नहीं बन रहा, लेकिन ये usually iris की या pupillary margin को mimic करती है. This is called a Vossius ring. क्या होता है Vossius ring? It is a ring formed on the anterior capsule of the lens. How? Why? जब प्यूपिल ब्लंट ट्रॉमा में जब प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, प्यूपिल जाके आयरिस के साथ लगेगा, सॉरी आयरिस जाके लेंस के साथ जब लगेगा, इट विल स्टिक टू द लेंस टेम्पोरेरीली. इट विल डिपॉजिट सम ऑफ इट्स पिगमेंट ऑनटू द एंटीरियर कैप्सूल. ऐसे ही है जैसे किसी चीज का रंग नहीं होता, आपके हाथों पे इंक लग जाए, तो आप किसी कागज के ऊपर अपना उंगली रखें तो आपकी उंगली के निशान या प्रिंट उसके ऊपर लग जाते हैं. इट्स द सेम प्रिंसिपल. या सालन, आप रोटी खा रहे हैं, सालन आपके हाथों पे लग गया, आपने कपड़े के ऊपर अपने हाथ 2 मिनट के लिए रखे, वो निशान कपड़े के ऊपर रह गया. इट्स द सेम प्रिंसिपल. बाय द सेम प्रिंसिपल अ वोसियस रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द एंटीरियर कैप्सूल ऑफ द लेंस. तो ये तो था वोसियस रिंग. आपकी बात बाकी भी ठीक है, डिसलोकेशन हो सकती है, कैटरैक्ट बन सकता है. इस पेशेंट में क्या हुआ है, एक कैटरैक्ट बन गया है. कैटरैक्ट को हम देखते हैं, ये प्यूपिलरी मार्जिन है, दिस इज द ओपेसिटी इनसाइड द लेंस. इसकी क्या peculiar शेप है? व्हाट कैन यू अप्रिशिएट अबाउट दिस कैटरैक्ट? ना, इट्स नॉट सनफ्लावर. सनफ्लावर मैं आपको दिखाता हूँ आज. सनफ्लावर आई शो यू. दिस इज अ रोजेट शेप. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ ब्रांचिंग पैटर्न. ठीक है, लुक एट द कैटरैक्ट, इट हैज अ ब्रांचिंग पैटर्न. This type of cataract which has a branching pattern, it's called a rosette shaped cataract. And a rosette shaped cataract is very specific, or it's the buzzword you should remember for a traumatic Trauma cataract. के लिए. Trauma के लिए. हो गई थी. Trauma के लिए आपने याद रखना है. क्या हो गया? Trauma के लिए आपने याद रखना है. वो traumatic cataract is a rosette shaped cataract. So rosette shaped cataract आपने देख लिया, आपने Vossius ring देख लिया. फिर बात आई डिसलोकेशन की. डिसलोकेशन बिल्कुल हो सकती है. This patient, where do you think, what kind of dislocation do you think has happened? Is it an anterior dislocation or is it a posterior dislocation?
Interior. Anterior. Anterior dislocation, because we're seeing the globular lens in the anterior chamber. So an anterior dislocation can also happen. इस बंदे में अब क्या है? What has happened in this patient? Or what are we seeing? Posterior Anterior dislocation. dislocation of lens into the retina. Posterior dislocation of the lens into what? Retina के front पे. Retina के front पे क्या पड़ा होता है? Vitreous में. So हम कहेंगे posterior dislocation into the vitreous. That is correct. This is a posterior dislocation into the vitreous. Lens के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? What can we appreciate about the lens? If you look closely, you can see that there's something, a blue rod of sorts, जिसका यहाँ पे एक dilated end है, यहाँ पे नजर आ रही है, फिर एक यहाँ पर आपको एक नजर आ रही है. Then we're seeing a clearer hole or aperture over here. Then we're seeing something over here. We're seeing any different things. क्या नजर आ रहा है हमें? What is this? इसका न्यूक्लियस कहीं और है और ये सिर्फ कैप्सूल है उसका. ठीक है, that's good. आपने एक चीज अच्छी पकड़ ली कि हमें कैप्सुलर बैग मिल रहा है, न्यूक्लियस नहीं है या कॉर्टेक्स इसके अंदर नहीं है. न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स नहीं है, लेकिन कैप्सुलर बैग हमें मिल रहा है और साथ हमें ये प्रॉन्ग से मिल रहे हैं. तो कौन सी कंडीशन है जिसमें न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स नहीं होता और कैप्सुलर बैग सिर्फ होता है? कोई ऐसी कंडीशन हम बनाते हैं आर्टिफिशियली? एफेकिया में कुछ भी नहीं होता, बैग भी नहीं होता, या हो सकता है लेकिन intraocular lens. This is an intraocular lens which has dislocated posteriorly into the vitreous. ठीक है, so we saw an anterior dislocation, we saw a posterior dislocation. This is a posterior dislocation of an intraocular lens. Intraocular lenses में पहले ही support, क्योंकि अब surgery होती है, it's a risk factor, बैक की support कम हो जाती है, we can have a posterior dislocation. ठीक है, तो we have a few findings as well. मैं आपको दिखाना चाह रहा था, but there's only 1 minute left, तो मैं ये सेशन एंड कर लेता हूँ और अगला स्टार्ट कर लेते हैं. ये वैसे अगर ये IOL ना होता तो फिर ये पूरा कंप्लीट नजर आ रहा होता, प्रॉपर लेंस नजर आ रहा होता. बिल्कुल, जैसे ये नजर आ रहा है ना ऊपर ग्लोबुलर लेंस, ऐसे हमें नजर आता, हमें ऐसे नजर आता. बेसिकली ये जो ब्लू प्रॉन्ग्स आपको नजर आ रहे हैं ना, these are the haptics. इंट्राओक्युलर लेंस के आपको पता है 2 पार्ट्स होते हैं, one is an optic and the other is a haptic, the arm. These are the haptics जो हमें नजर आ रहे हैं. तो हमें haptics नजर आ रहे हैं, हमें एक posterior एक बैग नजर आ रहा है, तो we can say कि ये तो लेंस है जो इंट्राओक्युलर लेंस है. तो मैं इसको एंड करता हूँ. सारे जल्दी आ जाना, आगे सारी किस्सा कहानी पिक्चर्स पे ही चलेगी इंशाल्लाह. इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रॉमा, क्योंकि मुझे भी एक कंफ्यूजन होती थी पिक्चर्स. आई वांट टू मेक श्योर कि आप पिक्चर्स समझ रहे हैं, आपको फिर इजी रहेगा मेमोराइज करना. तो आई विल बी बैक इन अ मोमेंट.